News9's nationwide football talent search, the Indian Tigers and Tigresses talent hunt, it's igniting passion across India. See how the Mumbai chapter is unearthing the next generation of football stars. I would like to say that not only in India, from abroad also the kids came. I came to know that the kids are from Dubai, Malaysia and other countries also. Isn't it overwhelming? Kids are getting along with the cricket, football in India. That's its excitement. Football never go ahead with just a ball, but it makes you go ahead with the discipline and your life to go ahead with the balance. Vibrant green of Mumbai's Orchid School ground became a stage for dreams on Saturday. Indian Tigers and Tigresses talent hunt, which as I said is a News9 initiative. It drew a sea of young football enthusiasts hailing from Maharashtra, Gujarat and even Hyderabad. These budding athletes, they poured their hearts onto the field, each hoping to catch the eye of scouts and coaches there. The air buzzed with the energy of youthful ambition, punctuated by the cheers of proud parents who had journeyed from far and wide, a testament to unwavering support fueling these aspiring footballers' journeys. मेरा बेटा अद्वैत दीपक सामके वो अभी अंडर 15 में खेलता है. हम वाशी सानपाड़ा से आए. फादर एंड स्कूल में वाशी में वो पढ़ता है और वो अभी उसका फैशन है इतना है कि वो जूनियर केजी से वो खेल रहा है. अभी तक वो पूरा उसमें ही है और उसने अभी YPL MFA करके वो अभी स्कूल से नेशनल खेल के आया. अभी वो इंडियन टाइगर्स एंड टाइगर्स में उसका अभी उसने पार्टिसिपेशन किया है और इधर का वो टाइगर बनेगा इतना हमें पूरा गारंटी है. The energy there was electric. Hundreds of young athletes, each with a dream in their eyes, have showcased their incredible football skills today. From the bustling city streets to the quiet fields of rural Maharashtra, talent has converged on this very ground. There were some brilliant displays of agility, precision and passion. And of course, parents there, they watched with pride. They witnessed their children pour their hearts out, all in the hopes of catching the selectors' attention. And I started to play football at the age of 6. I started in school and then I joined football as a hobby, but now it's my passion. My favorite player is Neymar. He's a Brazilian player. And my favorite Indian footballer is Bhaichan Bhutia, as he was a good ex-captain for Team India. स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गेम स्किल्स के साथ स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है और स्ट्रेंथ मिलती है न्यूट्रिशियस खाना खाने से, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन. ये याद कर लीजिए और कहीं लिख लीजिए कि हर किसी को हर दिन 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना होता है. आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इंडिया की सबसे ट्रस्टेड फूड ब्रांड अमूल ने लॉन्च किए हैं हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स जैसे बटर मिल्क, लस्सी, मिल्क शेक, मिल्क, पनीर, दही. ये प्रोडक्ट्स बहुत टेस्टी है और अफोर्डेबल भी है. सिर्फ अमूल की वेबसाइट shop.amul.com पे ये मिलेंगे. तो आपको टाइगर एंड टाइग्रेस जैसी स्ट्रेंथ अपने खेल में लानी है तो आज ही ये अमूल वेबसाइट चेक करके हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स घर पे मंगवा लें at zero delivery cost. I am very happy about my life journey. I'm a single parent. I've taken care of my child from 4 years old. I have seen him like playing football. Since 6 years I understood that he's meant for it. I've met few coaches and where I felt कि people they said कि नहीं football में तो क्या ही कर लेगा. But I felt no, it's something which he's going to do it. So I gave him opportunity like you just try your luck, let's see. And he got selected, he played many matches and I'm so happy for that. तो अपने जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जिससे हम ये पोल्यूशन रोक सकते हैं तो वो क्या होंगे? हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं. हम लोग पॉलीथीन बैग्स की जगह पे जूट बैग्स यूज़ कर सकते हैं और फिर व्हीकल्स जो है उनको ना यूज़ करके साइकिल्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि पोल्यूशन कम कराएगा. और हम लोग प्लांट्स भी प्लांट कर सकते हैं जो कि एयर को फिल्टर करेगा. जी बिल्कुल ना. जैसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या फिर हम साइकिलिंग कर सकते हैं तो इससे पोल्यूशन कितना कंट्रोल हो सकता है, अपनी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकती है?
देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज़ अगर देखा जाए, अगर हम बाइक्स एंड कार ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, बट अगर हम उसकी जगह बाईसाइकिल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे पोल्यूशन कम होगा एंड उसके वजह से हम कम हार्मफुल एयर इनहेल करेंगे एंड शायद हमारा फिर स्काई थोड़ा क्लियर दिखेगा। जैसे कि रोल मॉडल होते हैं, कई तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं जो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जो है वो अपनाते हैं, तो आपका ऐसा कोई रोल मॉडल है क्या? हाँ, मैं एक रोल मॉडल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो प्रमोट करता है वाटर पीने को, ज़्यादातर कि अल्कोहल्स एंड ड्रिंक्स, वो ज़्यादातर प्लास्टिक वो सब पे यूज़ नहीं करता एंड ज़्यादातर वो स्पोर्ट्स में ये करता है, हेल्थ केयर एंड एवरीथिंग। राइट। जिस तरह से एक हाथ अगर आपको पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने बोली जाए कि कौन सी पॉलिसी है जो एयर पोल्यूशन के लिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो पॉलिसी कौन सी होगी? क्लीन इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कि हम जंगल में आग लगने से बचाने के लिए ड्रोन्स बना सकते हैं जो पानी लेके जाए और आग बचा सके। और जैसे कि पोल्यूशन रोकने के लिए हम जो हवा में पोल्यूशन है उसके लिए हम जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और छोटे जगह जाने के लिए हम चल के जा सकते हैं, ना कि हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। कुछ बदलाव करना चाहोगे क्या? हमें लिमिटेशंस करने चाहिए फैक्ट्री में कि लाइक वो लोग ज़्यादा पोल्यूशन ना करे एयर को, और भी बहुत छोटे छोटे लिमिटेशंस है, जैसे कि लाइक पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग ना हो और वो भी स्मोकिंग पे बैन लगा दी जाए। जैसे कि हवा बढ़ाओ इनिशिएटिव है, तो फिटनेस जो है, फिटनेस और उसके साथ जो ये इनिशिएटिव है उस तरह को हम किस तरह से साथ लेकर चल सकते हैं? मतलब अगर देखा जाए तो हम अगर वॉक के लिए जाते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि पानी की बॉटल्स खरीदते हैं जो प्रोबेबली प्लास्टिक की बनी होती है एंड उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद रोड पे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है अपनी एनवायरनमेंट को। तो अगर देखा जाए, अगर हम किसी वॉक पर जा रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम घर से वाटर बॉटल लेकर जाएँ एंड हम मेनटेन कर सकते हैं। लाइक अगर हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हम उसे प्रॉपरली रिसाइकल करें। और अब गेल जो कि हमारा जो गेल लिमिटेड है जो ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोट करता है, तो उस तरह का जो इनिशिएटिव गेल लेकर आए, जैसे कि हवा बढ़ाओ है या जिसकी एनर्जी जो है वो क्या बात है उसकी होती है, तो इस तरह के जो इनिशिएटिव वो ले रहा है, और किस तरह से सस्टेनेबिलिटी उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो, उन्हें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करने चाहिए ताकि एयर फिल्टर हो पाए, और फिर उनके जो सिटीजन्स हैं उनको भी प्रोवोक करना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा प्लांट करें ताकि उनके हेल्प भी हो। और नेचुरल गैस का इस्तेमाल भी हो, तो फिर हम लोग के ज़्यादा जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा साफ रहेगा। The day has come to a fantastic end. It's been 7 hours. I've been on the ground, and I mean, I would like to have few more hours to watch these boys and girls enjoy and show their talent. I'm very, very happy to see the kind of talent which has come to the Mumbai trials. I've heard that I've met kids who've got selected. They've come from places like Sholapur, they've come from Thane, they've come from different parts of Maharashtra, which says a lot about how this initiative of TV9 is going on. This Tigers and Tigresses, let me tell you, I'm blessed to be part of this, and I'm seeing some of these talents which I could tell you on the camera right now will play for India in years to come. So, for instance, I like this one girl. I won't tell the name right now, but let her play for India, then I will announce the name. And there are a couple of boys who I feel that if they get the right training at the right place, I think they have the potential to play for India. Because I'd only see India. I don't see any state, I don't see any district. Because, if you want to be part of the history, you need to play for India and you have to take India to the World Cup. That is the only goal which I have, and that's the only reason I've been part of this initiative, because finding the talent is something which I love, but what happens to the talent is the question. So in this initiative, we are taking the best boys and girls to one of my most beautiful countries in Europe, which is Austria, and I'm very, very confident that some of the boys and girls who will be selected there, they will have the best potential to even play in Europe.